Yeah. Now listen, guys. Like we have Lobby, De Bruyne, Alberta, Van inconstant transformation, जिसको इनलाइजेशन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, right? What exactly happened when we dissolve glucose in water in presence of basic medium? Then base will extract alpha acidic hydrogen and a new transformation, a new transformation occur which various isomers. ठीक है? Now understand what exactly it means. Listen, beta, I have aldehyde group. ठीक है? Now, in the presence of glucose, right, you have D-glucose. This is OH, OH, H, OH. Right? Correct? Now, in this case, right, what exactly happens? Your first base will extract the acidic hydrogen. Now, understand that this is the alpha carbon and this hydrogen is acidic. Why it is acidic? Remove H plus, check the stability of negative charge. If I'm removing the H plus, checking the stability of negative charge, this negative charge will be stabilized by resonance done by electron withdrawing group. Right. Now, which makes this hydrogen acidic. So if it is acidic hydrogen, what will happen? The base OH minus will extract this hydrogen, and initially an equilibrium reaction takes place whereby I am getting a negative charge, C double bond O, H and OH. Agreed? And the rest of the molecule is exactly same. I'm not drawing it because the entire orientation is exactly same. Then you know that this molecule will be in resonance with this C double bond O. So pi sigma negative resonance will take place, and because of this resonance, I'll be getting CO minus H double bond C OH. The molecule will be intact, CH2OH. Now बेटा एक चीज समझो, ठीक है यार, अगर ये O माइनस बना तो ये O माइनस वापस से रेजोनेंस करेगा ना. अगर ये वापस से रेजोनेंस करेगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जिसे ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, राइट. सपोज करो अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम चीज आएगी. बट अगर ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो OH जो है ना वो हमारा इस डायरेक्शन में चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज उस साइड आ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई चीज ट्रायगोनल प्लेनर होती है तो पाई बॉन्ड नीचे से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है और राइट से भी आ सकता है. अगर ये राइट पे आया तो जो OH राइट हैंड साइड है वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो लेफ्ट जाएगा और मेरे पास नेगेटिव चार्ज राइट पे आ जाएगा. तो shall I say that I'll be getting a new molecule whereby it'll become C double bond O, H, C negative, single bond, OH, and the entire molecule is same. Agreed? Agreed? Now one more thing. One more thing. The very same molecule from CO minus, H, double bond C, OH, and entire molecule is same. Now understand that this C negative, ये O minus, RO minus and the RO minus is more basic than OH minus. So this RO minus will extract H plus from water, and I'll be getting COH, H double bond C, OH. The entire molecule is intact. Here
This C minus will extract H plus from water. So on the right hand side, I'll be getting an CH bond. Here I'll be getting an OH bond. Above molecule is intact. Below molecule is intact. OH, OH, H. Now tell me one thing. Here, one molecule I got here. Now, second case in this particular aspect, if I'm getting this enol here, so shall I say that if it is forming a double bond, I'll guess aldehyde. It is also possible that rather than this OH is forming a double bond, this OH can also form double bond here and this negative charge shifts here, right? Possible है ना? ऊपर वाले OH से हमारे पास दो केसेस है, राइट? ऊपर वाले OH से पहला केस तो आया कि तुम्हारे पास नॉर्मल ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया इंटैक्ट, तुम्हारे पास ये वाला मॉलिक्यूल आ गया। अब नीचे वाले OH से अगर डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या होगा? अगर ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो I'll be getting a negative charge. Can be on either side. It doesn't matter. Here I'll get C double bond O positive H, and this will leave. Now you know that enol can convert into keto. How? H plus will leave from here. Pi bond will come back, and H plus attacks on this negative charge. I'll be getting CH2OH, C double bond O. The rest of the molecule is intact. Many students ask me this. Okay, sir, the thing is, in this case, the negative charge which you have put in on the left hand side, you can put on the right hand side also, right here. I can say yes, I can put it on the right hand side, but the problem is this carbon is not chiral, so it doesn't make a difference. जब chiral होता तब right और left में OH में फर्क पता लगता, right? अब जब chiral ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट में डालो या फिर राइट में. Getting it? But one thing is sure, my D-glucose, I'm getting an epimer at the second carbon position. कोई भी एपीमर अगर सेकेंड कार्बन पोजीशन पे है ना ग्लूकोज के, तो उसको क्या बोलते हैं? डी मैनोस. एंड तुम्हारा जब इनॉल सेकेंड वाला कार्बन बनाएगा, इट बिकम डी फ्रक्टोज. तो शैल आई से दैट योर डी ग्लूकोज is in equilibrium with D mannose and also in equilibrium with D fructose. Say yes or no. बात समझ में आई? तुम्हारा जो डी ग्लूकोज है वो तुम्हारा डी मैनोज भी बन सकता है और डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज भी बन सकता है. अंडरस्टूड? और इस ट्रांसफॉर्मेशन को इनलाइजेशन कहते हैं, राइट? बिकॉज इनॉल हैपेंस ओवर द इनलाइजेशन. इसको आइसोमराइजेशन भी कहते हैं. और इससे ना जेई के अंदर और नीट के अंदर और मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन क्या आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा. तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड H है and you have H over here and let's say OH over here, ठीक है? And these guys will be asking you that this is CH3. Now obviously this carbon is chiral. They'll be saying that I have put OH minus in water for long amount of time. So what all molecules which are possible over here? I know that this hydrogen will be extracted by this OH minus. I'll get enol, and if it is coming back, it can come back in this way, where this newly formed H can come down and OH will come above. So I'll be getting a mirror image of this. Say yes or no. अरे बोलो हाँ या ना. एक ही कायरल सेंटर है, अगर ये आर है और इस कायरल सेंटर के अंदर दो ग्रुप इंटरचेंज कर दो तो आर विल बिकम एस, राइट? सो एंटायर मॉलिक्यूल बिकम मिरर इमेज. से यस और नो. And second thing, what happened here? This molecule, this aldehyde can become CH2OH, and middle carbon will become C double bond O and CH2OH. So I'll be getting these two isomers over there. Now this question will be answered only on the basis of above transformation which we have studied. अगर ये नहीं पढ़ा होता ना तो तुम्हें इसका क्या कहते हैं आंसर देना बहुत इम्पॉसिबल टाइप था. बट अंडरस्टूड? तो तुमने ये लिखा? नहीं सर. अच्छा लिखो, जल्दी लिखो.
लिख लिया? हाँ सर।
हो गया. Very good. Done. Okay. Now listen. ये और लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं. हाँ. Done. Yes. Okay. Now listen, guys. uh, some important points and reactions. Guys, listen. तुम लोगों को पता है ना कि जो भी हेमी एसिटल्स होते हैं जिसमें OH के ऊपर OR लगा होता है, ठीक है? Any hemi acetal. Am I audible, guys, properly? Yes. Okay. कोई भी हेमी एसिटल होता है ना, हेमी एसिटल का मतलब होता है कि जब तुम C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड को या फिर किसी भी कीटोन को अगर तुम एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो, एक ही अल्कोहल के साथ, या तो एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में, तो एक इक्विलिब्रियम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. ऑल द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर इन इक्विलिब्रियम. तो तुम्हारे पास हेमी एसिटल आता है. हेमी एसिटल इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए हेमी एसिटल अगेन इट कैन फॉर्म C डबल बॉन्ड O, OR कैन लीव एंड I'll get aldehyde group. Understood? So hemiacetals are unstable either in acidic medium or in basic medium. So I'll write it over here. Hemiacetals are unstable in acidic or basic medium. But what exactly happened here? If you have hemiacetal, हेमीएसिटल को तुम्हें एसिटल में कन्वर्ट करने के लिए ना ड्राई HCl गैस लगता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ऑब्वियसली, जिसके अंदर H प्लस क्या करता है, अगेन इस OH को एक्टिवेट करता है इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप. It will leave easily. H2O will leave. Why it will leave easily? Because the positive charge on the carbon is stabilized by resonance done by oxygen. So again, if I'm getting a positive charge carbon, again this alcohol can attack on this positive charge carbon and I'll be getting C, O positive, H, R, O, R. O positive H unstable है, H plus will leave. ये तुम्हारे पास वापस आ जाएगा and I'll get C, O, R and O, R. इसे कहते हैं एसिटल.
एसिटल का मतलब होता है एक कार्बन दो ईथर लिंकेजेस के साथ जुड़ा हुआ है, एंड ईथर लिंकेज आर ओनली अ गुड लिविंग ग्रुप ओनली इफ दे आर एक्टिवेटेड इन एसिडिक मीडियम। जब तक H प्लस अटैक नहीं करेगा इस ऑक्सीजन पे, तब तक वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तब तक वो लीव नहीं करेगा, तब तक वाटर अटैक नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, राइट। तो दे आर रिएक्टिव इन एसिडिक मीडियम, बट इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम एसिटल्स आर स्टेबल। बात समझ में आई? ये हमने कर रखा है ऑलरेडी, बट आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप। बात समझ में आई? in acidic medium, acetals in basic medium, acetals are stable, but hemiacetals are unstable in acidic as well as in basic medium. Have I made my point clear? Similarly, तुम्हें अगर याद हो, हम लोगों ने दो अल्कोहल मॉलिक्यूल लिए थे इस टाइप के, और मैंने कहा था ड्राई HCl गैस लोगे तो यहाँ से H2O निकलेगा, शॉर्टकट बताया था, और एसिटल लिंकेज बना दिया था, राइट। ये तुम्हें शॉर्टकट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 चाहिए, बिकॉज जो वाटर निकलेगा उस वाटर को निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज H2O जब तक नहीं निकलेगा दोबारा से H प्लस जो अटैक करके वाटर पीछे से अटैक कर देगा। सो आई डोंट वांट दैट, so that is why I have used diHCl or concentrated H2SO4. Have I made my point clear? Acetals are stable in which medium? Which medium? Basic. वेरी गुड। नाउ लिसन गाइस, मेरे पास ना ग्लूकोस है, डी ग्लूकोस, ध्यान से देखना इसको। OH OH H OH, ये OH है, H है, H है, H है। मेरे पास मैनोस है, मैनोस इज एन एपिमर ऑफ ग्लूकोस, तो OH OH H H। और मेरे पास फ्रक्टोस है जो कि कीटोन शुगर है, CH2OH CH2OH OH OH H। अब ध्यान से सुनना, मुझे ना इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना? साइक्लिक, जैसे वाटर के अंदर एग्जिस्ट करता है ना साइक्लिक, 6 मेंबर रिंग, हमने किया ना, 6 मेंबर रिंग बनता है हेवर्थ प्रोजेक्शन के अंदर, राइट। अब एक बार बताओ, जब ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पे, ऊपर वाले कार्बन पे, तो साइक्लिक रिंग बनेगा। ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, साइक्लिक रिंग बनेगा। ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन पे, साइक्लिक रिंग बनेगा। सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH होता है वही अटैक करता है। अब सीन क्या है, मुझे बस इस मॉलिक्यूल को वो बनाना, क्या नाम है इसका, हेवर्थ प्रोजेक्शन। और ये 5 मेंबर रिंग बनेगा, ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देख लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। कीप CH2OH इन इक्वेटोरियल पोजीशन, हमेशा CH2OH को हमेशा ऊपर रखना। 5 मेंबर रहेंगे तो CH2OH है और H है इस कार्बन पे, तो 5वां कार्बन है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ लगा हुआ था, 2 3 4 5। ठीक है। इधर ग्लूकोज के अंदर, अगर तुमको याद हो, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, CH2OH ऊपर गया था ये वाला, एंड मैंने क्या कहा था, जो भी OH आएगा, देखो इसमें जो न्यूली फॉर्म्ड OH आएगा वो यहाँ पे आएगा, come on top as well as on bottom, right? So it can come on axial position, can come on equatorial position। मैं क्या कर रहा हूँ, zigzag बना रहा हूँ। zigzag का मतलब होता है it can come on equatorial और axial, right? और बाकी सारे OH जो थे ना ग्लूकोज के अंदर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे। इससे सिंपल तरीका नहीं है याद करने का ये। ठीक है। अब चक्कर क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो मैनोस में कहाँ इश्यू आएगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 में, जहाँ पे OH इक्वेटोरियल पे, उसको कहाँ पे रखोगे, एक्सियल पे।
इसका जो नया न्यूली फॉर्म्ड OH है कहीं पे भी आ सकता है, बिकॉज अल्फा बीटा आइनोमर बन गए इक्वेटोरियल पे। समझ में आई बात? इससे सिंपल तरीका नहीं है। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, जितने भी कार्बन है सारे OH डाल दो इक्वेटोरियल पे, CH2OH डाल दो इक्वेटोरियल पे ग्लूकोज के अंदर। एंड चेयर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड OH है इक्वेटोरियल एक्सियल पे हो सकता है। हाँ, अगर ये एक्सियल पे है तो OH और CH2OH आर ट्रांस, वो अल्फा हो जाएगा। अगर ये इक्वेटोरियल पे तो दोनों सिस हैं तो बीटा हो जाएगा। गेटिंग इट? अगर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा, अगर OH ऊपर की तरफ है तो बीटा। इतना समझ में आया गाइस? समझ में आया इतना? हाँ, सेकेंड कार्बन पे न्यूली फॉर्म्ड OH और CH2OH कहीं पे भी आ सकता है। अगर OH और CH2OH सेम साइड पे आए तो क्या हो गई? न्यूली फॉर्म्ड OH और CH2OH अगर सेम साइड पे आए, ये OH ले लो, ये CH2OH ले लो। अगर OH और CH2OH सेम साइड पे आए तो उसको कौन सा आइनोमर बोलते हैं? बीटा या अल्फा? बेटा जब OH और CH2OH सिस होते हैं एक दूसरे के तो क्या बोलते हैं बेटा? बीटा या अल्फा? बीटा। और अगर OH नीचे हो, न्यूली फॉर्म्ड OH CH2OH से, तो उसे अल्फा बोला जाता है। और जो चीज राइट हैंड साइड में होती है उसको नीचे रखते हो तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H। इसका नाम होगा अल्फा या फिर बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। 6 मेंबर रिंग को पायरानोस बोलते हैं। ये हो जाएगा अल्फा या बीटा डी, मैनोस से आया तो मैनोपायरानोस। और फ्यूरानोस बोलते हैं, पायरान नहीं बोलते, फ्यूरान बोलते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल फ्यूरान स्ट्रक्चर। फ्यूरानोस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा या बीटा डी फ्रक्टो, फ्रक्टोस से आया ना, तो फ्रक्टो फ्यूरानोस। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? देखो, जहां तक मुझे पता है कि तुम लोगों को इधर इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, वो तो मैनेज कर लोगे। बट इश्यू यहाँ पे आएगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग हमने बनाना सीखा नहीं। मैं तुमको जस्ट दोबारा बता देता हूँ कि फ्रक्टोज फ्यूरानोस कैसे बनाया जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एंड यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है। नीचे तुम्हारा CH2OH है, ये तुम्हारा OH है, ये H है, OH है, ये H है, ये H है, ये OH है। ये सेकेंड लास्ट ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करता है। न्यूली फॉर्म्ड OH O माइनस OH जो बनेगा, OH राइट हैंड साइड में भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है। अगर ये न्यूली फॉर्म्ड OH राइट हैंड साइड में आया तो CH2OH इधर आ जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। एंड बाकी के जो ग्रुप्स है वो इंटैक्ट रहेंगे, OH H, OH H, और नीचे आ जाएगा CH2OH and H। उसके अलावा जो न्यूली फॉर्म्ड OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है, CH2OH राइट हैंड साइड में आ सकता है। ये ऑक्सीजन बीच में है, कार्बन डाल दो। यहाँ पे जो O माइनस है वो राइट साइड में आ गया तो OH साइड में लिख दिया, CH2OH को लेफ्ट में लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, कार्बन HOH इधर लिख देंगे, H आएगा, ये आ जाएगा OH, ये OH और ये H, और नीचे आ जाएगा CH2OH और यहाँ आ जाएगा H। एनी डाउट इन दैट? देख लो ध्यान से। ये बताओ कौन सी मेंबर रिंग बनी मेरे पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन सी मेंबर रिंग बनी? 5 है। 5 मेंबर रिंग बनी, राइट? So I do got 5 member ring. I have got 5 member ring from that. तो 5 member ring यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे भी एक 5 member ring आएगी। मैंने क्या कहा था, जो लास्ट वाला कार्बन है ना उसमें CH2OH हमेशा ऊपर डालना और H नीचे डालना। जो न्यूली फॉर्म्ड OH राइट हैंड साइड में, तो न्यूली फॉर्म्ड OH नीचे आएगा और CH2OH ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन,
फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे जो H है वो नीचे है और जो OH है वो नीचे है फोर्थ कार्बन पे। इधर जो न्यूली फॉर्म्ड OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो ऊपर आएगा, CH2OH नीचे आएगा। और इधर जो है तुम्हारा CH2OH को हमेशा ऊपर ही रखना है, H नीचे रखना है। यहाँ पे पोजीशन इंटैक्ट रहेंगी, ठीक है। जब न्यूली फॉर्म्ड OH और CH2OH सेम साइड पे होते हैं इसको बीटा बोलते हैं। और अगर ये जो जगह अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोस की जगह फ्यूरानोस हो जाएगा, बिकॉज 5 मेंबर है। फ्रक्टो फ्यूरानोस, here also beta d fructo furanus। have I made my point clear? समझ में आया किया कैसे हम लोगों ने? वही शॉर्टकट लिया जो लिए थे पहले, लिया था ना, सेम शॉर्टकट अभी लिया, ठीक है गाइस, समझ में आया? हाँ सर। ये वाला लॉजिक भी समझ में आया तो उसको करने की मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं आज के बाद। तो आई गेस पहले ये लिख लो, ठीक है। ये लिख लेना कि सारे एसिटल्स जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं और हेमी एसिटल्स आर हाईली अनस्टेबल इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। जल्दी एक मिनट, हाँ तुम लिख लो, मुझे बताओ एक मिनट, है ना? हो गया? हाँ रवीश सर सुनो ना, ये 1 पार्ट इन 10⁻6 एंगस्ट्रॉम है ना, तो डी लैम्डा आपका हो जाएगा 10⁻16 मीटर, क्योंकि लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। तो लैम्डा, हाँ लैम्डा इज इक्वल टू H/P है, ठीक है। तो डी लैम्डा हो जाएगा H/P² dP, ठीक है। तो dP आ जाएगा और dP इंटू dx इज इक्वल टू H/4 पाई। एक मिनट में देख लेता हूँ। डी लैम अच्छा लैम्डा बाय P² इंटू डी लैम्डा किया ना हमने, तो मैं देख लेता हूँ एक बार, रुको। नहीं देखो, डी लैम्डा है ना 10⁻16 आएगा, ठीक है। और लैम्डा 10⁻10 दे रखा है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है, तो डी लैम्डा हो जाएगा H/P² इंटू dP, राइट। तो उसको H से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो H²/P² लैम्डा² आ जाएगा और H से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा² तो 10⁻20/H इंटू dP आ जाएगा। तो H/10⁻⁻20 आ गया, तो अपना डी लैम्डा 10⁻16 दे ही रखा है, राइट। तो अपना dP आ जाएगा, इससे dP से dx आ जाएगा, H आएगा इसके अंदर, H का टर्म नहीं जाने वाला।
नहीं नहीं नहीं, h बाय p है ना, तो h बाय p स्क्वायर होगा ना सर। डी लैम्डा जो होगा वो h बाय p स्क्वायर इंटू dp होगा ना। तो h से मल्टीप्लाई करोगे, h से डिवाइड करोगे तो h बाय p का होल स्क्वायर 1 बाय लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो dp बाय लैम्डा स्क्वायर p आ जाएगा, वो h आ जाएगा, h नीचे एक h बचेगा। तो उसमें एक h का टर्म मिसिंग है, मतलब h का टर्म नहीं दिखा हुआ ऑप्शन में। तो मेरे ख्याल से वो आपको एक h का टर्म आया था क्या उसमें? नहीं नहीं होगा, अच्छा समझ सके। हाँ वो फाइनली कैंसिल हो जाएगा उसमें। एक काम करता हूँ, 2 मिनट तो मैं, हाँ 2 मिनट दो, मैं एक बार वर्कआउट करके देता हूँ, है ना। गाइस, हो गया सर। वेरी गुड। लिखो ये। यार एक बात बताओ, सुनो, ये बच्चा पार्टी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला है कि अनसर्टेनिटी इन द वेवलेंथ जो है ना, दैट इज 1/10⁶, गेटिंग इट, ऑफ लैम्डा, 1/10⁶, ठीक है। और लैम्डा दे रखा है इन्होंने 1 एंगस्ट्रॉम। तो जो लैम्डा हो जाएगा वो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो डी लैम्डा कितना होगा? 10⁻16 मीटर। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। 1/6 ना, 1/6, ठीक है। तो तुम्हारे पास डी लैम्डा 10⁻16 आ गया, ठीक है। 1/1 पार्ट इन 10⁻6 पार्ट, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁻6 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू डी लैम्डा, ये दे रखा है। हाँ ठीक है, 10⁻16 आ जाएगा। अब चक्कर क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी होता है। बोलो हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो डी लैम्डा बाय डी पी इज इक्वल टू h बाय पी स्क्वायर होगा, राइट। तो तुम्हारा जो डी लैम्डा हो जाएगा, डी लैम्डा की वैल्यू पता है मेरे को, ठीक है। डी लैम्डा बाय पी स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू डी पी, यही आएगा। इसको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और एच से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू डी पी। बोलो हाँ या ना, बिकॉज प्लस माइनस एरर चलता है, राइट। नेगेटिव साइन को मैं नहीं लूंगा बिकॉज प्लस और माइनस होता है। बात समझ में आई? तो डी पी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई होता है ना। तो डी पी कितना है? डी लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू एच इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। बोलो हाँ। तो डी एक्स कितना आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻20 बाय डी लैम्डा कितना था? 10⁻16, राइट, इंटू 4 पाई। तो 10⁻⁻4/4 पाई, करेक्ट। ए पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अरे अरे वो ठीक है, अरे 3.142 होती है ना। तो 3.14 इंटू 4 कितना होगा? 12.5 ले लें, 12.5। तो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻12.5 ले लो, ठीक है। तो 8 के अप्रॉक्स कटेगा ये, करेक्ट। हाँ या ना? हाँ 996790 h बाय 4 पाई 1.2 1.6। तो ये आया तुम्हारा 8 इंटू, ये 10⁻2 है, 10⁻⁻6, करेक्ट। 8 इंटू 10⁻6
ये क्या बदतमीजी है, आंसर ही नहीं मैच कर रहा है इसमें। 4 पाई की जगह 2 करो 1.6, तो 1.6 इंटू 10⁻⁵ वाला ऑप्शन है क्या इधर? हमने सही किया ना, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻16 10⁻4 by 4 पाई 10⁻4 10⁻6 10⁻600 to 10⁻⁻6। आंसर सी, 8 इंटू 10⁻⁶। बदतमीज ने 1.6 इंटू 10⁻7 दे रखा। अरे यार। एक मिनट। सर जी, ये ये क्वेश्चन ना फिजिक्स में से लिया गया है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ना dp इंटू डी एक्स इजिकल टू h/2 पाई लिखा जाता है, ठीक है। मेरा आंसर आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻6, है ना। तो सीन क्या है, ये लिया फिजिक्स से और फिजिक्स में से डाल दिया केम के अंदर, जिसने भी डाला। समझ रहे हो, तो होना क्या चाहिए था, 8 इंटू 10⁻⁶, तो 1.6 इंटू 10⁻⁵ होना चाहिए था। इन गधों ने 1.6 इंटू 10⁻7 किया, क्योंकि जो ऑथर था ना उसने 10 का इधर उधर कर दिया। समझ रहे हो आप? हाँ, है एक्चुअली वो जो अपना एस सी वर्मा है ना उसके अंदर यूज किया हुआ है, और उसमें ना अपना h/2 पाई लिया हुआ है 4 पाई की जगह। तो ये कंफ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ हाँ, बट चक्कर क्या है ना, केम के अंदर तो हम n1 ही लेते हैं ना। अगर ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आता तो h/4 पाई ही लिया जाता ना सर, है ना। तो सीन क्या है, अगर ये आईआईटी में आता तो केम का आंसर 8 इंटू 10⁻⁶ आता, और फिजिक्स का आंसर 16 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे ये फंस गया, है ना। ये सीन है। हाँ, मैं भेजता हूँ। हाँ, मैं भी भेजता हूँ, 2 मिनट। ओके गाइस, चलें आगे। चलें आगे, अच्छा सॉरी सॉरी, सुनो। कहाँ तक लिखा तुमने? यहाँ तक लिखा ना? हाँ, ये लिख लो जल्दी से। लिख लिया? डन गाइस।
हो गया? Yes. ओके ग्रेट, चलें आगे। देखो मैं क्या बोलना चाहता था, ओके नाउ लिसन, मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी हेमी एसिटल है वो स्टेबल नहीं होता एसिडिक और Okay. बेसिक मीडियम में, राइट? राइट बोलो हाँ। हाँ अब सुनो, अगर कोई भी हेमी एसिटल स्टेबल नहीं होता एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तुम्हारे पास ना ये सारे हेमी एसिटल्स हैं, डी फ्रक्टोस है डी में और एसिडिक मीडियम में अल्फा कीटो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। अगर हेमी एसिटल बन भी गया ना, फिर से ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हेमी एसिटल बन भी गया ना, तो ये बेचारा ऊपर वाले ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेचारा ऊपर वाले चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेचारा ऊपर वाले चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल इन बेसिक मीडियम। अब एक बात बताओ, बेनेडिक्स, फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट जो होते हैं वो कौन से मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं? अगर तुम्हें बोला जाए बेनेडिक्स, फेलिंग्स, बेनेडिक्स हो गया, फेलिंग्स हो गया और टॉलेंस हो गया, अगर याद हो तो बेनेडिक्स होता है कॉपर सल्फेट इन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। जैसे टार्टरेट लिखा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, वीकली बेसिक मीडियम है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कॉलियम सिट्रेट। जैसे ही सिट्रेट लिखा तो पता लग गया ये भी बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। टॉलेंस क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट, इट इज AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगेन ये बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में जो हेमी एसिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल होता है। कोई भी हेमी एसिटल है ना, या तो वो एल्डिहाइड बनाएगा मोनोसेकेराइड का, या तो फिर वो हेमी एसिटल फ्रक्टोज की तरह बेलफेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करते हैं और एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद बेचारे रिड्यूस हो जाते हैं। ये रिड्यूस हो जाएगा Cu2O में, जो रेड कलर का पीपीटी होगा, ये बेचारा रिड्यूस हो जाएगा Cu2O में, और ये बेचारा Ag में आएगा जो सिल्वर मिरर होगा। अब इन सारी चीजों के देखते हुए तो तुमको पता लग जाएगा ना कि जो तुम्हारा डी मैनोज है, डी ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है, वो सारे रिड्यूसिंग शुगर हुए कि नहीं हुए? बिकॉज वो बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, राइट? राइट अंडरस्टूड? बात समझ में आई? तो आज के बाद कोई भी हेमी एसिटल लिंकेज है, उनको क्या बोलोगे तुम? रिड्यूसिंग शुगर। गेटिंग अ पॉइंट? चाहे वो फ्रक्टोस वाली रिंग हो, बिकॉज इन फ्रक्टोस के अंदर ये कार्बन है, ये O है, OR है और ये OH है, तो ये लिंकेज कौन सी होगी? हेमी एसिटल होगी कि नहीं होगी? बेटा ये जो लिंकेज है वो कौन सी होगी? OH और OR, है ना? कार्बन पे OH भी है और OR भी है, और ये बेचारा सी डबल बॉन्ड बनाएगा, वो निकल जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पे OH है, तो ये बेचारा रिड्यूसिंग शुगर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा। गेटिंग अ पॉइंट? सॉरी, अल्फा कार्बन पे OH है, ये बाहर वाला OH ऑक्सीडाइज होता है। गेटिंग इट? बोलो हाँ। अरे समझ में आया? ये कार्बन है, OR है, OR लिंकेज है ये वाली, और ये OH लिंकेज है, तो हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल के जो एडजेसेंट वाला कार्बन है अल्फा हाइड्रोक्सी है, राइट? तो इससे मैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलूंगा ना जब वो सी डबल बॉन्डो बनेगा। बोलो हाँ या ना? अंडरस्टूड? सिमिलरली तुम्हारे पास ये है, क्या कहते हैं,
मैनोपायरानोस है, ग्लूकोपायरानोस है। इसके अंदर क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ पे OH है और ये OR लिंकेज। अगेन हेमी एसिटल हुआ कि नहीं हुआ ये? अगेन ये हेमी एसिटल का जो ये ऑक्सीजन है OH है, वो अगर ये डबल बॉन्ड वापस बनाता है तो क्या आएगा तुम्हारे पास बेटा? अगर वो डबल बॉन्ड बनाता तो क्या बनाएगा वो? अरे बोलो। अगर ये OH ने डबल बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड H के एडजेसेंट में आएगा, तो एल्डिहाइड आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? डन। डन। Yes. ओके। नाउ एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दोनों ही रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। और अगर सपोज करो तुमको किसी ने ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर तुम्हारा हेमी एसिडल लिंकेज है कि नहीं है? इसमें तुम्हारा हेमी एसिडल लिंकेज है कि नहीं है? इस कार्बन पे OH है और OR है, तो हेमी एसिडल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना। तो अगर ये हेमी एसिटल है तो ये भाई साहब रिड्यूसिंग होगा कि नहीं होगा? अगर ये हेमी एसिटल है ना, तो इस हेमी एसिटल के अंदर अगर मैं H+ डाल के एक और अल्कोहल डाल दूं, ठीक है, तो ये बेचारा H+ क्या करेगा, इस OH पे अटैक करेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एडजेसेंट टू ऑक्सीजन रेजोनेंस है। और जैसे ही कार्बोकैटायन बना ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, और तुम्हारे पास क्या आएगा, न्यूली फॉर्म्ड O और न्यूली फॉर्म्ड OR नीचे आ जाएगा, बिकॉज कार्बोकैटायन है, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। अगर OR ऊपर आ जाएगा तो H हमारा नीचे आ जाएगा, और अगर OR नीचे आएगा तो H ऊपर आएगा। तो इस लिंकेज को आप क्या करोगे, कार्बन पे ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, OR है, और इसी कार्बन पे एक और OR है, इस कार्बन पे एक OR ग्रुप है, और इस कार्बन पे OR ग्रुप है, तो इसको हेमी एसिटल बोलोगे कि एसिटल बोलोगे? अच्छा, क्या एसिटल मॉलिक्यूल बेसिक मीडियम में खुलता है क्या? इन बेसिक मीडियम, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, क्या फेलिंग सॉल्यूशन, क्या इसको ओपन अप कर सकते हैं क्या बेसिक मीडियम में? नहीं. तो क्या ये रिड्यूसिंग होगा? नहीं. हाँ, तो विल नॉट रिड्यूस, अंडरस्टूड। तो उसको मैं नॉन रिड्यूसिंग बोलूंगा, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। Yes. चले आगे। हाँ. चलो ग्रेट, डन। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना। अब ये मेन मेन चीजें हमारी हो गई खत्म, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड का मतलब होता है कि एसिटल लिंकेज बनाना, ठीक है। तो लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स की, मैंने मिथाइल ग्रुप डाला और वो ग्लाइकोसाइड बन गया, ठीक है, ग्लाइकोसाइड। अब सीन क्या है मेरे पास, आई हैव ओ, I'll do one thing, I'll take a chair form, that is more better. डी ग्लूकोज ले रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से बीटा डी ग्लूकोज ले रहा हूँ, ठीक है।
ग्लूकोज के OH OH जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है और बीटा पे भी इक्वेटोरियल पे रहेगा, ठीक है। तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। बीटा का मतलब पायरानोस की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना HCl के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH। तो मुझे बताओ सबसे पहले H प्लस कहाँ अटैक करेगा? गाइस कहाँ अटैक करेगा? तुम्हारे पास बहुत सारे OH है, तो किस OH पे वो सबसे पहले अटैक करेगा? किसको एक्टिवेट करके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा? अरे बोलोगे? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, कौन से कार्बन पे OH एक्टिवेट करके उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा? 1 वन पे करेगा। वन पे क्यों? रेजोनेंस हो रहा है। या बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो वो सबसे पहले वहीं पे अटैक करेगा। तो ये आएगा तुम्हारे पास H प्लस will attack on this OH and make it a good living group। तो मेरे पास H2O पॉजिटिव आएगा एंड H2O पॉजिटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप। H2O लीव कर जाएगा और तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये CH2OH है, ये OH है, ये OH है, ये OH है और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। इस कार्बोकैटायन पे हर एक कार्बोकैटायन के दो पाथवेज होते हैं, राइट? राइट। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा? हाँ, तो मीथेनॉल आएगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा। ऑक्सीजन के अटैक फ्रॉम टॉप, दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन, और फ्रॉम एक्सियल पोजीशन। सो जो न्यूली फॉर्म्ड वो आएगा ना, OCH3, it can come on equatorial position also, or it can come on axial position also। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जैसे ही तुम्हारे पास एसिटल लिंक, तब हम इसको बोलते हैं मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप लग गया। मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे, तो अल्फा डी ग्लूको पायरानोस की जगह पायरानोस साइड बोला जाता है, आइड लग जाता है, इससे पता लगता है इसके पास एसिटल लिंकेज है। सिमिलरली हियर यू विल हैव मिथाइल बीटा डी ग्लूको पायरानोसाइड। साइड का मतलब क्या हो जाएगा? एसिटल लिंकेज। समझ में आई बात गाइस? लिख लो मेरे लाल पीलो हरे नीलो, लिख लो। डन। नो ओके, वन सेकेंड।
डन। हाँ। हम्म, चलो नाउ लिसन गाइस, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल बेंजाइल और मिथाइल फ्रॉम ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक ग्लाइकोसाइड ले लिया, यहाँ पे CH2OH है, OH है, OH है, OH है। मैं तुमको एक रिएक्शन याद दिला देता हूँ। मेरे पास अल्कोहल था, अगर अल्कोहल को मैंने डाई मिथिलीन, सॉरी क्या नाम है, डायजोमिथिलीन के साथ रिएक्ट किया ना, तो मेरे पास ROCH3 बनता है, मिथाइल एस्टर अल्कोहल। सेम रिएक्शन तब होता है जब CH3 होल ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्ट करते हो, ROCH3 बनता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, RCH2Cl के साथ रिएक्ट करो तो बेचारा ये SN2 करता है और ये निकल जाता है, तो ROCH2R बनता है। ठीक है, तो सीन क्या है, मैं इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, पहला CH3 एंड CH2N2 के साथ। तो जितने भी OH ग्रुप्स है ना, दैट OH ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, OCH3, तो CH3 रहेगा, ये बना रहेगा OCH3, 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 और ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा गैस, बिकॉज उसमें ये ऑक्सीजन अटैक करता है। ठीक है, सेम थिंग हैपेंस विथ CH3 होल ट्वाइस SO4 के साथ। और अगर मैंने इसको बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जो SN2 करता है, बेंजाइल क्लोराइड, अगेन ये OH अटैक करेगा कार्बन पे, OH अटैक करेगा कार्बन पे, ये OH करेगा, ये OH करेगा, तो बस क्या आएगा, ये OCH नीचे आ जाएगा एज इट इज, यहाँ आ जाएगा OCH2OPH, सॉरी बेंजाइल ग्रुप लिख देता है BNZ, बेंजाइल ग्रुप, यहाँ पे OBNZ, बेंजाइल ग्रुप का मतलब है CH2PH। यहाँ पे बता देता हूँ बेंजाइल ग्रुप क्या है, CH2PH, तो मैंने इसको बेंज बोला है, ये आ जाएगा O बेंज। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड गाइस। Yes, sir. हाँ, एक बार लिख लो जल्दी से। लिख लिया। Yes, sir. हम्म। ओके, अब सुनो, थोड़ा
अच्छे अच्छे रिएक्शन हैं इसमें। सपोज करो ये सिर्फ जेई के लिए है, ठीक है, आज तक नीट में और मेंस में पूछा नहीं गया, सिर्फ जेई पर्सपेक्टिव के लिए। मेरे पास OCH3 है, OCH2PH है, दैट इज फिनाइल ग्रुप। OCH2PH है जो बेंजाइल ग्रुप लिख रहा था मैं, OCH2PH है, CH2OCH2PH है। अगर मैं इसको निकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करूँ ना, तो सिर्फ ये वाले बॉन्ड्स रिएक्ट करते हैं, याद रखना है, ये वाले, इनका रिडक्शन होता है। इसका नहीं होगा, जो कि मैंने नहीं शेड किया। तो इसमें डायरेक्ट रिडक्शन होगा, वापस से OH आ जाएगा मेरे पास। ये तुम्हारे पास OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा और CH2OH आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इसमें टॉल्यूइन ग्रुप बनेगा। गेटिंग इट? और अगर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, ये बदतमीज बहुत रिएक्टिव होता है H+ से, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस बन जाएगा, बाकी इंटैक्ट रहेंगे। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका। आई गेस तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट? कि किस ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करना है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. प्लीज लिख लो, ये थोड़ा सा ना पिक्यूलियर रिएक्शंस के अंदर आता है। लिख लिया? हाँ, चले आगे। हाँ. हम्म लिसन, डेरिवेटिव मैंने क्या कहा था, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव कुछ और होता है, अगर याद हो तो। पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव जो बनता है ना, वो साइक्लिक फॉर्म में बनता है। ये तुम्हारा OH है, बीटा ले लो, अल्फा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहते हैं इसको, रिएक्शन विथ CH3, C डबल बॉन्ड ओ Cl। यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, तो कौन सी रिएक्शन देता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक, क्या Additional. बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है, राइट? Yeah. राइट। नाउ ऑब्वियसली, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये अटैक करेंगे इस पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, फॉर्म बैक होगा, ये निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन पे यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो -of HCl। तो यहाँ पे OAC आ जाएगा, यहाँ पे भी OAC आ जाएगा, यहाँ पे भी OAC आ जाएगा, OAC आ जाएगा, CH2OAC आ जाएगा, वेर AC इज नथिंग बट OC डबल बॉन्ड और CH3। इसको AC ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। दिस इज OAC। Understood? This is penta-acetyl derivative. Understood?
डन. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट. हम कहाँ थे? ओसा जोन फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं इसको? ओसा जोन फॉर्मेशन. जितने भी एल्डोस शुगर होते हैं ना, वो ओसा जोन जरूर बनाते हैं. ठीक है, तो ओसा जोन क्या होता है? ध्यान से सुनना. मेरे पास ग्लूकोज है, ओ एच ओ एच एच ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच ओ एच 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 एच. ना फिनाइल हाइड्राजीन को रिएक्ट करवा रहा. फिनाइल हाइड्राजीन, कुछ याद है तुमको? कुछ पिक्यूलियर रिएक्शन हुआ करती थी. क्या पिक्यूलियर रिएक्शन हुआ करती थी? जब भी में नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स होते थे ना, जिसके पास एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक है. ठीक है, यार ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक नहीं है बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है. ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है बिकॉज रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो जहाँ इस नाइट्रोजन के पास एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H2 निकलता है, यहाँ से O निकलता है, तो माइनस ऑफ H2O आता है. तो इसको बोलते हैं HPH. H OH OH H OH. ग्लूकोस, फिनाइल, ग्लूकोस, फिनाइल, हाइड्रोजन. ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या होता है? एक और फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है. ये किसी को पता नहीं है इतना कि एक और फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है. वो क्या करता है? ये जो कार्बन है ना, उसको ऑक्सीडाइज करता है. उसको ऑक्सीडाइज करता है सी डबल बॉन्ड ओ में, एंड सी डबल बॉन्ड एन, एन एच, पी एच, एच. बाकी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम रहता है. ओ एच ओ एच एच. ठीक है, और यहाँ से निकलता है तुम्हारा पी एच, NH2, या पी एच NH2 निकलता है, प्लस, या पी एच NH2 निकलता है. ठीक है, पी एच NH2 निकलता है, वो सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होता है. ठीक है, अब इतना करने के बाद ना और एक अमोनिया गैस निकलता है. अब उसके बाद करने के बाद होगा क्या? दोबारा से ये सी डबल बॉन्ड हो एक और मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा. यहाँ से H2O निकलता है. अगेन सी डबल बॉन्ड एन, NH, PH, सी डबल बॉन्ड एन, NH, PH, और बाकी का एग्जैक्ट मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहता है. CH2OH, सॉरी, CH2OH OH OH H. इसे बोलते हैं ग्लूकोसा जोन. ग्लूकोसा जोन. ठीक है, इसे ओसा जोन बोला जाता है. ठीक है, अब जेई के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आता है? वो पूछते हैं कि मेरे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, OH OH H OH 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 H OH OH H H H. वो बोलेंगे एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करें टू फॉर्म सी डबल बॉन्ड, टू फॉर्म ग्लूकोसा जोन. ग्लूकोसा जोन में तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड एन, NPH है, सी डबल बॉन्ड एन, NPH है, और एग्जैक्टली मॉलिक्यूल नीचे वाला सेम है. तो पूछेंगे भाई साहब कितने मोल्स फिनाइल हाइड्राजीन के लगे? तो लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, और उनको रिएक्शन पता नहीं होती है, तो एक्स की वैल्यू वो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं एक्स की वैल्यू, अगर नहीं पता हो रिएक्शन तो?
अरे बोलोगे एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखोगे अगर तुम्हें सिर्फ रिएक्शन नहीं पता हो तो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अगर ये रिएक्शन ऊपर वाली नहीं देखी और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख देखा तो एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे इसको जस्ट देख के? 2, 2। और एक्चुअली में होते कितने हैं? 3. हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. हाँ लिख लो। डन। Yes, sir. ओके। डन 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 बोलो हाँ। हाँ. Okay. Now, guys, listen. Formation of cyclic acetals. सुनो भाई लोगों, सुनो ध्यान से। पता है क्या? अगर मेरे पास विसिनल डायोल है, विसिनल डायोल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन पे ओवेच लगे हैं। ये सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रांस है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना एसीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और HCl गैस ले लो यार। मुझे पता है, देखो अब होता क्या है, जो भी विसिनल अल्कोहल होते हैं ना, जो कि सेम साइड पे होते हैं, वही एसीटोन के साथ सिर्फ रिएक्ट करते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस ये H है, ये H है सेम साइड पे, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, CH3 है, यहाँ से H2O जाता है and it leads to the formation of acetals. ऑब्वियसली एक साइक्लिक रिंग बनी है, तो साइक्लिक रिंग में ये दोनों पोजीशन सेम साइड पे होनी चाहिए, अदरवाइज साइक्लिक रिंग बनेगी कैसे, राइट? साइक्लिक रिंग ट्रांस तो बन सक जाएगा, राइट? रिंग बेंड होके टूट जाएगी 4 मेंबर रिंग में। तो मतलब अगर यही सेम रिएक्शन में इसके साथ करूं तो क्या रिएक्शन होगी क्या? ये ट्रांस है, विल इट फॉर्म एसिटिल? देखो रिंग हमेशा ऐसे बनती है सेम साइड से, राइट? ऐसा नहीं होगा कि एक पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, रिंग ही नहीं बनेगी, राइट? समझ रहे हो? वो बॉन्ड टूट जाएगा, इतना अप्रोचेबिलिटी नहीं रहेगी। गेटिंग इट? हाँ. तो भाई साहब ट्रांस जो होते हैं विसिनल डायोल, वो ये रिएक्शन एसिटल फॉर्मेशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड, लिख लो। तुमसे एक क्वेश्चन पूछना उसके बाद।
Done, guys. Yes, sir. चलो गैस, अब एक बात बताओ। ये मेरे पास, ध्यान से देखना, हाँ, अच्छी तरह आंखें आंखें खोल के देखना है ना, बंद करके मत देखना। ये तुम्हारे पास बीटा डी ग्लूकोज है। ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, CH2OH, ठीक है। ओ एच, ये अल्फा डी है, सिर्फ एनोमर की पोजीशन पे। हाँ हाँ, दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस के अंदर एक बात बताओ, है ना, कोई भी तुमको सिस डायोल दिख रहा है, विसिनल सिस डायोल, कोई भी? विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे दो OH सेम साइड पे दिख रहे हैं क्या? हम्म, डायोल दिख रहा है सेम पोजीशन पे, सिस विसिनल डायोल। ये सिस पोजीशन है कार्बन। OH कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे? No. अबे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? No. और यहाँ कहाँ जा रहा है? No. यहाँ कहाँ जा रहा No. है? ये कहाँ जा रहा No. है? यहाँ तो विसिनल है ही नहीं, मतलब नो रिएक्शन विद C डबल बॉन्ड और CH3। यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है? No. ये कहाँ जा रहा है? No. ये कहाँ जा रहा है? No. ये कहाँ जा रहा है? तो कौन सा सिस है? कोई दिख रहा है तुमको सिस अरेंजमेंट में? एक ही है, ये। एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल, एक मोल के साथ सिर्फ। तो एक मोल यूज होगा इधर, बाकी सब इंटैक्ट रहेंगे बिकॉज ट्रांस है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड?
डन। Yes. हाँ, कहाँ थे अभी हम लोग? हाँ, ग्रेट, हो गया। अब नाउ रिएक्शन विथ HiO4 और NaIO4 और KiO4। IO4 मतलब IO4 माइनस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब भी कार्बन पे OH विसिनल हो और सेम साइड पे हो, अगर साइक्लिक है तो सेम साइड पे हो, अगर साइक्लिक है तो ओपन चेन है तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, दोनों OH सेम साइड पे आ सकते हैं। तो OH अगर दो OH सेम साइड पर है, विसिनल है, या OH सी डबल बॉन्ड और विसिनल है, या अगेंस्ट दो सी डबल बॉन्ड और विसिनल है, कीटोन की बात हो रही है बेटा इधर, या फिर अगेन सी डबल बॉन्ड और OH विसिनल है, तो चक्कर क्या है, जब भी OH या सी डबल बॉन्ड और विसिनल होते हैं ना, एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं ना, तो HiO4 क्या करता है, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करता है। ये OH और सी डबल बॉन्ड और बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड और OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जहां पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा ना, उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 यूज होगा इसके अंदर। तो देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 HiO4 is utilized over here। इतना समझ में आया? हम्म, हाँ जी। तो जैसे ही कार्बन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक करो तो यहाँ पे डालोगे OH CH3, नीचे एक OH आ जाएगा। तुमने बॉन्ड ब्रेक किया तो ऊपर एक OH डाल दो, ये OH इंटैक्ट रहेगा। नीचे बॉन्ड ब्रेक किया तो एक और OH डाल दो। तुमने दो बॉन्ड ब्रेक करे सी डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे तो दो OH डाल दो। अगर तुम दोबारा से सी डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे तुमने बॉन्ड ब्रेक करे तो दो OH डाल दो। एक ही बॉन्ड ऊपर ब्रेक किया तो एक OH डाल दो और ये डाल दो। बात समझ में आई? Yes. यहाँ से H2O निकाल दो। जैसे ही H2O निकालोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो CH3H, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाए दो। यहाँ से दो OH होते हैं तो एक आएगा, तो आई गेट HC डबल बॉन्ड हो OH। यहाँ से दो OH निकालोगे, H2O निकालोगे तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ से H2O निकालोगे, अगेन ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ से H2O निकालोगे, अगेन CH3CHO बनेगा। दिस इज द वे हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। समझ में आई बात? हाँ जी, हो गया। गाइस एक बात बताओ, ये लिख लिया? बोलो हाँ या ना।
ओए लिख लिया? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना। हाँ, सपोज करो मेरे पास CHO है, ठीक है, फील नहीं आई। मेरे पास ये है, ये हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। OH ले लो, H ले लो, ठीक है, OH, OH, H, OH, 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 रुक जा यार, गलती कर दी। OH, OH, H, OH, या क्वेश्चन ये है कि इस मॉलिक्यूल में कितने मोल्स ऑफ HiO4 यूज होंगे? हाँ जी, कितने मोल्स ऑफ HiO4 यूज होंगे? एंड साइक्लिक मॉलिक्यूलर बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, याद रख लेना ये चीज। हाँ जी, कितने मोल्स? हाँ जी, कितने मोल्स? अरे बोलो। कंडीशन क्या बताई थी मैंने? कि जो दोनों OH हैं वो क्या होने चाहिए? दोनों OH क्या होने चाहिए? अरे लाल पीलो हरे नीलो, दोनों OH क्या होने चाहिए? दिस शुड बी विसिनल। और तो यहाँ पे कौन से तुमको सेम साइड पे विसिनल दिख रहे हैं और कितने दिख रहे हैं? क्या ये दोनों विसिनल और सेम साइड पे है क्या? ये दोनों साइक्लिक मॉलिक्यूल है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज दोनों हो जाते। गेटिंग इट? क्या दोनों OH विसिनल सेम साइड पे हैं क्या? नहीं। क्या दोनों OH विसिनल सेम साइड पे हैं क्या? नहीं। दोनों OH विसिनल और सेम साइड पे हैं क्या? हाँ। तो एक ही मोल यूज होगा। अंडरस्टूड? यस सर। अंडरस्टूड। चलो वील वाइंड अप नाउ, ठीक है। अर्शनी, सेंड कर देना, है ना? हाँ। ओके। अर्शनी प्लस वेदांत, वेदांत send। चलो गाइस, टेक केयर, है ना? बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा।